پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ زندہ خدا کے بزرگ اور مقدس ترین اسم اعظم میں آج شب پھر آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے اور شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے پھر سے یہ ایک انمول اور خوبصورت وقت میرے جیون میں بخشا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے اس زندگی بخش اور باب برکت کلام کو برموقع سیکھنے والا ہو سکوں۔ اس خوبصورت سما کے لیے میں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ ہم آج کے دن عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج پھر ہم اس سلسلہ کو جاری رکھیں گے۔ 69 نمبر 69 زبور اور اس کی 4 اور 5 آیت پر میں بولوں گا، لیکن اچھا ہوگا کہ اگر میں پہلی 5 آیات کو تلاوت کر لوں، اگرچہ پہلی 3 آیات پر ایک اور خدا کے خادم بول چکے ہیں، میں ان پر کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، صرف آیت 4 اور 5 کو پیش کرنے کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھنا ضروری سمجھوں گا، سیاق و سباق پیش کرنا، پس منظر پیش کرنا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ہمارے ساتھ جو اسکائپ کے علاوہ فیس بک کے کئی پیجز پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ میں اس کلام کو سیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کئی پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے میں آپ کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ اگر میں صرف 4 اور 5 آیت آپ کے سامنے رکھوں تو آپ شاید الجھن میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے کڑی سے کڑی ملانا بہت ضروری ہے۔ 69 زبور کی پہلی آیت سے، اے خدا مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے، میں گہری دلدل میں دھنسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں، مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں، پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان آیات پر بات کرنے سے پیشتر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو اصل عبرانی زبان ہے جس میں یہ مزامیر شاعری کی زبان میں لکھے گئے ہیں، ان میں جہاں آیت 1 شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، میرے مغنی کے لیے شوشنیم کے سر پر داؤد کا مزمور، یہ گویا پہلی آیت ہے،
اور جہاں سے ہم پہلی آیت کا اردو میں آغاز کرتے ہیں وہ دوسری آیت ہے۔ یہ صرف اس زبور کے ساتھ ہی نہیں ہے، تمام مزامیر جن کے ٹائٹلز ہیں ان کا آغاز شروع سے یعنی ٹائٹل پہلی آیت سے ہوتا ہے۔ یہ زبور بھی بزرگ داؤد کا ہی ہے، اور ہم اس زبور سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے۔ میر مغنی پھر سے میں کہوں گا، یا تو وہ کوائر انچارج کوائر ڈائریکٹر تھا جس کے لیے یہ زبور لکھا گیا کہ وہ گائے، اور دوسرے نمبر پر یہ خدائے بزرگ و برتر کے لیے لکھا گیا کیونکہ آلات موسیقی اور پرستش کا بانی اور موجد خدا بذات خود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں میر مغنی کے لیے شوشنیم کے سر پر داؤد کا مزمور، یہ شوشنیم عبرانی زبان کا ہی لفظ ہے اور اس کے معنی للی یعنی پھول کے ہیں۔ للی انگریزی زبان میں ہے۔ جب ہم انگریزی بائبل دیکھتے ہیں تو وہاں پر شوشنیم نہیں، وہاں پر للی ہے۔ تو علماء کے مطابق یہ پاسبل ہے کہ للی یا پھول چونکہ بہت خوبصورت ہوتا ہے تو یہ زبور گویا اس خوبصورتی کو جو مزامیر جو زبور نویس ابھی مس کرتا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس زبور کو اس نے لکھا۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ زبور لکھتے وقت شوشنیم کوئی خاص سر ہوئی ہو جس سر پر یہ زبور تیار کیا گیا، اور عالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ شوشنیم کوئی آلائے موسیقی ہوا ہو جو بجایا جاتا تھا۔ حتمی طور پر کوئی فائنل بات نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق خوبصورتی اور موسیقی سے تھا۔ اب جب ہم اس زبور کے بارے میں دیکھتے ہیں تو دو اہم ترین اور بالکل منفرد باتیں باقی زبوروں سے ہمیں اس زبور 69 میں دیکھتے ہیں۔ یہ غیر معمولی زبور ہے اور اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک عالم، ایک مفسر قدیم مشنری جی کیمبل مورگن ان کا نام تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مزامیر ہیں ان مزامیر میں سے یہ وہ واحد زبور ہے، یہ وہ واحد زبور ہے جس میں اتنے زیادہ کرب اور غم اور دکھ اور ترک کیے جانے اور افسوس کا ذکر ہے۔ باقی 149 مزامیر میں اتنا زیادہ کرب، دکھ، غم، افسوس اور آہ و نالہ نہیں جتنا زبور 69 میں پایا جاتا ہے۔ یہ بالکل منفرد بات ہے باقی مزامیر کی نسبت۔ دوسری بات، نئے عہد نامہ میں، عہد جدید میں باقی تمام زبوروں سے زیادہ اس زبور کے ریفرنسز کوٹ کیے گئے ہیں، حوالے دیے گئے ہیں 69 زبور کے۔ اور ایک
खुदा के खादम कहते हैं तकरीबन 10 मरतबा इस ज़बूर का अहद जदीद में जिक्र हुआ है। अनाजील अरबा में भी इसका जिक्र है। अरबा से मुराद 4 यानी चारों अनाजील में, और मुकद्दस पौलुस ने भी इसका जिक्र किया, इस ज़बूर का। मसीह खुदावन ने भी किया और मुकद्दस पतरस ने भी इस ज़बूर का अपनी तालीमात में और अपनी टीचिंग्स में और अपनी गवाहियों में इस ज़बूर का जिक्र किया है। आयत 1 में दाऊद ये फरमाते हैं, ऐ खुदा मुझको बचा ले। और आपको याद होगा, हवाला निकालने की जरूरत नहीं, कि जब मुकद्दस पतरस कश्ती पर थे और देखा कि कोई पानी पर चलकर आ रहा है, शायद आपने महसूस किया कि कोई भूत है, और आपने चाहा कि क्या यह मुमकिन है कि मैं चंद कदम पानी के ऊपर चलूं। मसीहा का जवाब क्या था आप जानते हैं, हां चल और आ। लंबी बात को मुख्तसर करते हुए मुकद्दस पतरस चंद कदम चले और फिर लहरों को देख करके हो मैं कहीं डूब ना जाऊं, डूबने लगे। तो फिर मालिक को, रब्बी को, उस्ताद को, खुदावंद यीशु मसीह को, मुनज्जी को पुकारा और कहा, खुदावंद बचा ले। सेम यही बात जो यहां पर लिखी है, ऐ खुदावंद मुझे बचा, मैं डूबने लगा हूं। और बहुत सारे मुकद्दसीन जब दुआ करते हैं, मेरी शख्सी दुआ में भी बाज़ोकात ये अल्फाज आते हैं, आपकी दुआओं में भी होते होंगे, ऐ खुदा मुझे बचा ले। किससे? जिस किस्म की भी प्रॉब्लम और मुश्किल से हम दो चार होते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, मुल्तजी होते हैं, खुदावन मुझे बचा ले। और इस पूरे ज़बूर में मुश्किल वक्त में, बड़े मुश्किल कठिन वक्त में खुदा को मदद के लिए पुकारा जाता है या उसके हुजूर बचाए जाने के लिए इल्तिजा की जाती है इस पूरे ज़बूर में। और ये जो पहली 3 आयात हमने गुजरे कल देखी, मैं उन पर आधा घंटा नहीं बोलूंगा, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा, इन 3 आयात में ज़बूर नवीस क्या कहते हैं बुजुर्ग दाऊद, मैं गहरे पानी में और गोया दलदल में धंसता चला जा रहा हूं। और आपको मालूम है कि इस वक्त दाऊद बड़े कर्ब और बड़े दुख में मुब्तला थे, और वो हालात को देखकर, माहौल को देखकर, दुश्मनों को देखकर अपने आप की बाबत खुदा के हुजूर ये इल्तिजा कर रहे, कन्फेस कर रहे, इकरार कर रहे और मान रहे थे, मैं दलदल में और पानी में, कीच में गोया धंसता चला जा रहा हूं। और आप जानते हैं कि जब बुजुर्ग दाऊद इंतहाई शादमान थे, खुश थे, तो ज़बूर 40 की 2 आयत में क्या कहते हैं, ओ खतरे दे टोए ते खोबियां थू है मैनू कड के ले आया बाहर, ते किथे मेरे कदम रखे, चट्टान उत्ते
रखे पैर मेरे ते बख्शिए कदमानू उस्तवारी। जब दाऊद शादमान और खुश है तो आप कहते हैं, ओ मेरे पांव अब चट्टान पर हैं, जहां से मैं फिर धंसने का और फिसलने का और डूबने का नहीं हूं। लेकिन अब चूंकि दाऊद अंडर डिप्रेशन थे, इंतहाई परेशानी और मायूसी के आलम में, तो उस वक्त वो ये कहते हैं, मुझे यूं लगता है जैसे मैं दलदल में गहरे पानी में धंसता चला जा रहा हूं। ऐ खुदावन मुझे बचा ले। कितनी खूबसूरत बातें हैं यहां पर हमें नजर आती हैं। और चार्ल्स स्पर्जन बहुत अजीम हस्ती गुजरी, मुफस्सर है, और आपने कहा कि यह सिर्फ दाऊद की ही बात नहीं है कि वो मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से मायूस, दुश्मनों से घिरे हुए गहरे पानी में धंसते चले जा रहे थे। यह लिटरली पानी या दलदल नहीं था। वो महसूस करते थे हालात की दलदल में, हालात के सैलाब में गोया मैं डूबता चला जा रहा हूं। और चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि ईमानदार के लिए, हर ईमानदार के लिए कई तरह के गहरे पानी और गहरी दलदल हैं जिनमें वो धंसता रहता है। आप ईमानदार हैं जहां तक मैं समझता हूं मसीह खुदावन में, और आप जानते हैं कि आप किस किस तरह की दलदलों में और गहरे पानियों में धंसते चले जाते हैं। मैं अपने बारे में जानता हूं, मैं कितने गहरे पानियों में और दलदल में धंसता चला जाता हूं। आए दिन प्रेयर रिक्वेस्ट्स मिलती हैं, आपको भी मिलती होगी, कि लोग किस तरह दलदल में और गहरे पानियों में धंसते चले जाते हैं, और कई बेएतकादी के गहरे पानी और दलदल में धंसते चले जाते हैं। ना मालूम खुदा मेरी आह को सुनेगा कि नहीं। कई मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों के पानी और दलदल में धंसते चले जाते हैं। कई मुश्किलात और दुखों और प्रॉब्लम्स और गम की दलदल और पानी सैलाब में डूबते चले जाते हैं। कई गुनाह की आजमाइश और अबलीस की तरफ से आजमाइश के गहरे पानियों में धंसते और डूबते चले जाते हैं। कई अपनी बातनी कमजोरियों के गहरे पानी और दलदल में धंसते चले जाते हैं। कई अपनी बीमारियों और परेशानियों के सबब से सोचते हैं, पता नहीं मैं इत्थों निकलांगा भी कि नहीं। अपने आप को वो गोया एक गहरे समुंदर में, पानी में धंसता हुआ महसूस करते हैं। आप में से कईयों की शख्सी जिंदगी में यह तजुर्बा है, क्योंकि मेरी जिंदगी में यह तजुर्बा है। और याद रखिए, कोई भी ईमानदार जो ईमानदार होने का दावा करे, वो इस दलदल और इस गहरे पानी से बचा हुआ नहीं है। उसकी जिंदगी में ये आजमाइशें और ये दुख और ये तकालीफ और बीमारियां, डिप्रेशंस आते ही हैं। आयत 4 में बुजुर्ग दाऊद खुदा के हुजूर इल्तिजा करते हुए ये कहते हैं, मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा है।
बड़ी गहरी बात है इस आयत में। एक तो ये कि ऐसे दुश्मन हैं जो मुझसे अदावत रखते हैं, नंबर एक, और उनकी अदावत बेसबब है, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है। नंबर तीन, वो मेरे सर के बालों से ज्यादा है, यानी कोई एक आद नहीं है। आपको याद है मैंने साउल का जिक्र किया था, अबीसलूम का जिक्र किया था, फिलिस्ती फौज और इवन साउल की अफवाज का भी। अकीतफल जैसे आस्तीन के सांप बन गए, और पता नहीं कौन कौन से, अबलीस सबसे बढ़कर दुश्मन था। और बुजुर्ग दाऊद ये कहते हैं मेरे दुश्मन सर के बालों से ज्यादा हैं, और वो क्या चाहते हैं? मेरी हलाकत, मर जाए, खप जाए। मेरी हलाकत के खाहां हैं। खाहां के माना चाहना। वो चाहते हैं कि मैं हलाक हो जाऊं। और नाहक दुश्मन जबरदस्त है। ये नाहक भी वही बात है, बेसबब, यानी बेकसूर। मैं इस तरफ आता हूं। और फिर वो कहते हैं बस जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा। बहुत मटेरियल और बहुत मवाद है इस एक आयत में। जरा गौर कीजिएगा कि बुजुर्ग दाऊद अपने मसाइल की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। लेकिन एक बात यह कि वो बेसबब मुझे सताते हैं और नाहक दुश्मन है, और वो जबरदस्त है, यानी जोरावर है। क्या ये बात काबिले कबूल है कि यहां पर दाऊद अपनी बाबत यह कहते हैं कि वो बेजा, बेसबब, कोई वजह नहीं तो मुझसे अदावत रखते हैं? क्या यह बात सही है कि दाऊद ये कहते हैं कि नाहक मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और जबरदस्त हैं? क्या यह बात सही है कि दाऊद ये कहते हैं कि जो मैंने छीना नहीं वो मुझसे रिक्वायर किया जाता है और मुझे देना पड़ा? इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। याद कीजिए कि इस वक्त दाऊद के जो दुश्मन थे, मैं यूं कहूंगा दुश्मनाने दाऊद, इस वक्त जिस सबब से दाऊद सताए जा रहे थे उसके पीछे कोई खास रीजन नहीं था। वो ये कह रहे नाहक, मसलन साउल को फिक्र पड़ गई थी कि ये मेरा तख्त ले लेगा, अगरचे खुदा के प्लान में था। लेकिन साउल, अब दाऊद के दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं थी। चाहता तो जान ले सकता था गार में, लेकिन ली नहीं। लेकिन साउल नाहक और बेजा, बेसबब दाऊद की मुखालफत और दुश्मनी को मोल लेता है। दाऊद का असल में यह कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मैं खुदा हूं। नो, ऐसी बात नहीं है। यानी बेसबब और नाहक नहीं, यह बात नहीं है। या जो मैंने छीना नहीं, नो, यह बात नहीं है। क्योंकि हम हॉनेस्टली अगर देखें
तो बुजुर्ग दाऊद ने कुछ छीना है और नाहक छीना है। क्या भला? हां, आप पहुंच गए हैं वहां। और या हित्ती के घर पर डाका डाला, बत्सबा को छीना है। और या हित्ती को महाजे जंग पर सफे अव्वल में ले जाकर उसका काम तमाम करवा दिया। तो यह नहीं है कि दाऊद अपनी तमाम तरह की कमियों और कमजोरियों की बाबत कहते हैं मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। नो, ऐसी बात नहीं है। वो यहां साफ तौर पर कहते हैं कि जिस सबब से मुझसे अदावत रखी जा रही है वो बेजा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नाहक मुझे सताया जाता है। और अंदाजा कीजिए कि दाऊद खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स, और इस कदर दुख में और कर्ब में। याद कीजिए, अगर दाऊद खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स होते हुए, बादशाह और नबी होते हुए, जंगी सूरमा होते हुए इस कदर दुख और कर्ब में मुब्तला हो सकते हैं, तो फिर आप और मैं ये दावा नहीं कर सकते कि मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा या नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही आई है। नो, हर ईमानदार, हर खुदा का बंदा और बंदी इन शिकंजों में कसा जाता है, इसलिए कि वो दुनिया के साथ और अबलीस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, इसलिए दुश्मन उनको सताता है। मेरे और आपके मालिक खुदावन यीशु मसीह के साथ भी तो ऐसा हुआ था ना। आपने कोई कसूर नहीं किया था, कोई भी नहीं। दाऊद की जिंदगी में तो कमजोरियां हैं, लेकिन मसीह ने क्या किया था? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, यानी यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, और इसका 15 बाब और इसकी 25 आयत। लेकिन यह इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि अगरचे मैंने कुछ किया नहीं, कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये जो मुझसे अदावत रखते हैं ये इसलिए है ताकि वो कौल पूरा हो। कौन सा? ज़बूर 69 69 वाला, कि इन्होंने मुझसे बेजा बेसबब नाहक अदावत रखी। तो आप देख रहे हैं कि इस आयत में बुजुर्ग दाऊद किस तौर पर कहते हैं कि मेरे दुश्मन बहुत हैं, वो मुझे सताते हैं, लेकिन जिस सबब से सताते हैं उसमें मैं अपने आप को बेकसूर पाता हूं। और फिर जब हम ये कहें कि मैंने कुछ नहीं किया, तो यह सिर्फ एक ही है जो यह कह सकता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसके अलावा इस दुनिया पर ना मैं कह सकता हूं, ना आप कह सकते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मुहावरा मशहूर है, लेकिन खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। हमें अपने आप को परखने की जरूरत है।
कि मैं कितना पानी में हूं। आयत 5। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, ऐ खुदा, तू मेरी हमाकत से वाकिफ है। हमाकत, यह लफ्ज अहमक से निकला है, बेवकूफी की तरफ इशारा है। ऐ खुदा, तू मेरी अहमकाना हरकत, वो काम जो मैंने बेवकूफी से किए हैं, उनसे तू वाकिफ है। ओ पौलुस रसूल करंथियों के खत में कितनी खूबसूरत बात कहते हैं, पहला करंथियों पहले बाब में, खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, हाँ, कि बादशाह बने, नबी बने। हाँ, खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, नकम्मों को, कमीनों को, बेवजूद लोगों को, ताकि मसीह के नाम के सबब से उनकी जमाने में शनासाई हो। यह खुदा की निगाहे करम है कि वो हमें घूरे से निकालता है और अपने साथ तख्त पर बैठाता है। और वो कहते हैं, ऐ खुदा, तू मेरी हमाकत से वाकिफ है। और ज़बूर 139 में भी हम देखते हैं ना, आपने फरमाया, ऐ खुदा, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को दूर ही से पहचान लेता है, जान लेता है, और मेरे ख्यालों, मेरी सोचों, मेरे अंदेशों की छान बीन करता है। जो कुछ मेरे भाई और बहन, मैं और तू बेवकूफाना हरकत करते हैं, खुदा उन तमाम हरकतों से वाकिफ है। उसकी निगाहें ऐसी है जो शोला की मानिद है, और उसकी निगाहों से कुछ भी छिप नहीं सकता। और यहां बुजुर्ग दाऊद अपने आप पर, अपने बातन पर निगाह करते हैं। इससे पहले वो इर्द गिर्द के लोगों पर, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा पर। और इस वक्त बुजुर्ग दाऊद अपने आप पर निगाह करते हैं और उनको अपना आप नजर आता है और कहते हैं, ऐ खुदा, तू मेरी हमाकत से वाकिफ है। वो काम जो मुझे करने नहीं चाहिए थे और मैंने किए हैं, और बेशुमार काम हम इसी तरह से करते हैं, इससे बढ़कर करते हैं, जिनका ताल्लुक बेवकूफी और अहमकाना हरकत से है। और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं है। यानी तेरी निगाह से ऐ खुदा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तू सब कुछ जानता है। ये क्लियरली बुजुर्ग दाऊद अपने बातन पर निगाह करते हुए बड़ी खूबसूरत अपनी जात की तस्वीर पेश करते हैं। अब हासिल कलाम इन दोनों आयात से मेरे लिए और आपके लिए यह है कि हम अपने आप पर गौर करें और सोचें कि कहीं हम अपने आप को कसूर होने के बावजूद, अहमकाना हरकत करने के बावजूद, गुनाह करने के बावजूद, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर भी अपने आप को यूं रास्तबाज और पाक लोग समझते हैं कि जैसे मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैं कुछ नहीं किया से मुराद वो गुनाह जो शायद जमाने में इंतहाई बुरे गुनाह है, ये उन्हीं की तरफ इशारा नहीं है। इवन वो बातें
जो झूठ पर मबनी हैं, हर वो बातें जो बदगोई और लालच पर मबनी है, हर वो बात जो दूसरों की बदबुरियों से ताल्लुक रखती है, ये तमाम खुदा के हुजूर गुनाह ही हैं। और अपने आप पर हमें सोचना है कि क्या मैं भी खुदा के हुजूर ये इकरार करता हूं, ए खुदा, मुझसे बहुत सी हमाकतें हुई हैं और होती भी है, मुझे बचा, मुझे मुआफ कर, मेरे बातन पर निगाह कर। क्योंकि हम शायद बहुत कुछ एक दूसरे से, अपने खानदान से, अपने हम जोली हम रफाकत लोगों से बहुत कुछ हम छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा की निगाह से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो सब कुछ मेरे बारे में और आपके बारे में बखूबी जानता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम खुदा के साथ हॉनेस्ट और देनतदार हो जाए। किसी के सामने हम इकरार करें या नहीं करें, यह शख्सी मामला है, लेकिन खुदा के हुजूर हमें अपना दिल हन्ना की तरह उंडेलने की जरूरत है कि खुदावन मुझे मुआफ कीजिए, मैंने ऐसे काम, ऐसी हरकत की जो आपकी नजर में भली नहीं थी, मुझे मुआफ कीजिए। और ये वक्त है इस कर्ज का चुकाने का, अपने इकरार और तौबा के जरिया से, ताकि हम रास्ती से खुदावन अपने खुदा के साथ हो चले। और अगर आप में से कोई ऐसे अजीज हैं जो अपने ताल्लुक को खुदावन के साथ मसीह यस्सु के वसीला से बहाल करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपके लिए इस वक्त दुआ करना चाहूंगा। जहां कहीं है, संजीदा हो जाइए और खुदावंद को पुकारिए, अपना दिल उसके हुजूर खोल दीजिए। आप जहां कहीं हैं, खुदावंद संजीदा दिलों की आवाज को, धड़कन को सुनता है। ए आसमानी बाप, आप सब कुछ मेरी और मेरे इन अजीजों की जिंदगी की बाबत जानते हैं। खुदावंद मिन्नत करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में हमारी तमाम अहमकाना हरकत, गलतियों और गुनाहों को मुआफ कीजिए और फजल अनायत फरमाइए कि हम रास्ती के साथ आपके साथ साथ चलते रहें और हमारी जिंदगी से खुदाबंद आपके नाम को जलाल मिलता रहे। और वो जो आपको नहीं जानते और वो अपने पापों का आपके हुजूर इकरार करते और तौबा करते हैं, दरे दिल आपके लिए खोलते हैं कि आप उनके दिल में आ जाएं। ऐ खुदाबंद यीशु, पाक रूह की सूरत में उनके कलूब में आकर बसेरा कीजिए और तख्त नशीन होइए और उन्हें गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए। और खुदावन, इन तमाम सामईन और नाजरीन में कोई भी अगर किसी मुसीबत में है, मुश्किल में है, दुश्मन अबलीस ने उसको घेरा हुआ है, खा उसके कई ही पहलू क्यों ना हूं, आप जानते हैं। ऐ खुदावन, अपने लोगों पर रहम कीजिए, बचा लीजिए अपने लोगों को
जिंदगी बख्शिए, सलामती बख्शिए, शिफा बख्शिए, अंडरस्टैंडिंग की रूह बख्शिए, बेदार कीजिए, दुआ और हमदोस्ताइश के गिरे हुए मजबू को बहाल कीजिए और अपने कुदरत वाले नाम को अपने लोगों की गवाहियों के वसीला से जलाल बख्शिए। मेरी दुआ आपके हुजूर मानिंद बखूर के पहुंचे, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावन यीशु अल मसीह के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। फिर मिलेंगे जब खुदावन की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।